Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we'll discuss about lesson planning. Lesson planning is a systematic process that empowers teachers to design and organize their instructional activities effectively. It serves as a roadmap for educators, guiding them through the teaching and learning process while ensuring that specific learning objectives are met. So it will explore the comprehensive process of lesson planning, highlighting each step involved. By understanding this process, educators can create engaging and powerful lessons that optimize students' learning outcomes. At the first stage, we identify the learning objectives. This first step in the lesson planning process is to identify clear and specific learning objectives. ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. इनको SLOs भी कहा जाता है, स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. Students learning objectives defines what students are expected to know, understands, or be able to do by the end of the lesson. These objectives should be aligned with the curriculum standards and reflect the design learning outcomes. By identifying learning objectives, teachers establish a focus for their lesson and ensure that instructional activities are purposeful and meaningful. Assess prior knowledge. तो before going to स्टार्ट द लेक्चर, टीचर को चाहिए कि वो बच्चों से उनके प्रायर नॉलेज को जो है वो एक्सप्लोर करें, उनसे क्वेश्चनिंग करें. हम ऑलवेज द न्यू नॉलेज ऑलवेज बिल्ट ऑन द प्रायर नॉलेज. ठीक है, जब न्यू नॉलेज जो है हमेशा प्रायर नॉलेज के ऊपर ही बिल्टअप होता है. तो प्रायर नॉलेज क्या होता है कि हमारा प्रीवियस या पास्ट नॉलेज जो पीस ऑफ नॉलेज बच्चों के पास होता है, तो आप उससे ही उनको नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं और न्यू नॉलेज उनको आप जो है वो सिखाते हैं, बच्चों को गेन करते हैं स्टूडेंट्स. तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड के स्टूडेंट्स जो है प्रायर नॉलेज की बेस पे ही न्यू नॉलेज को बिल्टअप करते हैं और हम कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को हम जनरल टू कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स को सिखाते हैं. वंस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमिन्ड, टीचर्स शुड एक्सेस देयर प्रायर नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स. दिस स्टेप्स हेल्प्स एजुकेटर्स gauge students' existing understanding of the topic and identify any misconception or knowledge gaps. Various formation assessment methods such as pre-test, concepts maps, or class discussions can be used to gather information about students' prior knowledge. By understanding their students' starting points, teachers can tailor their instructions to meet the diverse needs of the learners and build upon their existing knowledge. ठीक है, तो प्रायर नॉलेज को वो गेन करते हैं और उसकी बेस पे कहने की न्यू नॉलेज जो है वो उस पर बिल्टअप करते हैं. और पहले स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बेसिक चीज़ों को टीचर उनको आसान करके मुश्किल चीज़ को जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को इजी करके स्टूडेंट्स को समझाए ताकि वो मिसकंसेप्शन से बच सकें और उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके. देन थर्ड स्टेप पे हम कहते हैं सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़. ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि सूटेबल स्ट्रेटजी कौन सी है इसके लिए. आप बच्चों को कोई एक्टिविटी में एंगेज करना चाहते हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, लेक्चर मेथड है या कोई जो है डिस्कशन मेथड है, कौन सा मेथड इसके लिए सूटेबल है जो भी आप लेक्चर डिलीवर करना चाह रहे हैं, बच्चों को समझाना चाह रहे हैं. बेस्ड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टूडेंट्स नीड्स, teachers should choose instructional strategies that best facilitate the acquisition of knowledge and skills. There are various teaching methodologies to consider such as direct instructions, cooperative learning, inquiry-based learning, or project-based learning. The selected strategies should align with the learning objectives and engage students in active participation and critical thinking. Differentiate and personalization should also be considered to address the diverse learning styles and abilities of the students. Develop a sequence of activities. In this step, teachers develop a sequence of activities that support the chosen instructional strategies and learning objectives. The activities should be coherent, logical, and structured to ensure a smooth flow of the lesson. Consideration should be given to the introduction, development, and conclusion phases of the lesson. The sequence of activities should be include opportunities for student engagement, collaboration, and reflection. Teachers can incorporate a variety of activities such as discussion, group work, hands-on experiment, multimedia presentations, and problem-solving tasks to enhance students' learning experiences.
ठीक है। तो अब आप लेसन प्लान में कोई भी आप एक्टिविटी जो है उसमें आप रख सकते हैं कि बच्चों को अपने अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को जो है वो सपोर्ट करने के लिए या उसको बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए कोई भी उसमें एक्टिविटी को जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने लेसन प्लानिंग के अंदर, जो जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, कोई उसमें लॉजिक है या कोहेरेंस होनी चाहिए उस लेसन से रिलेटेड जो भी आप उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, या आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं या आप कंक्लूजन फेज़ पे चले गए, कहीं पे भी आप बच्चों को एक्टिविटी में एंगेज कर सकती हैं। इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट एक्टिव माइंड के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और उस पर आप थोड़ा सा वो लर्निंग प्रोसेस उनका ज़्यादा बिल्डअप होता है, वो सोच समझ के वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से वो कहने की डिफरेंट एक्टिविटीज़, अब डिस्कशन मेथड है, ग्रुप मेथड है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स हैं, मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स जो हैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। 5 स्टेप पे आता है इंटीग्रेट असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। Assessment and evaluation are crucial components of lesson planning as they provide insight into student progress and learning outcomes. Teachers should integrate various assessment methods throughout the lesson to measure students' understanding and mastery of the content. Formative assessments such as quiz, exit tricks, or observations can be used during the lesson to provide real-time feedback and inform instructional decisions. Summative assessments such as tests, projects or presentations can be employed at the end of the lesson to assess overall student learning. These assessments should align with the learning objectives and provide opportunities for students to demonstrate their knowledge and skills. ठीक है। अब इंटीग्रेट असेसमेंट और वैल्यूएशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। आपको डेफिनेटली पता है कि लेसन प्लान जो है डिफरेंट कंपोनेंट पे डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं कि हमने इस पार्ट में क्या समझाना है बच्चों को, फिर हमने नेक्स्ट स्टेज हमने कैसे चलना है। तो उसको कह रहे हैं कि डिफरेंट जो भी कंपोनेंट है ये आपकी स्टूडेंट्स की लर्निंग को बूस्ट करने के लिए और बेहतर लर्निंग को आपको जो है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और टीचर जो है वो इंटीग्रेट करती है डिफरेंट असेसमेंट मेथोडोलॉजीज़ को कि आपने बच्चों को असेस कैसे करना है, असेस करनी है उनके नॉलेज को कि उन्होंने कितना लर्न किया है। तो आप क्या करेंगे एंड ऑफ द लेसन आप बच्चों से लिटिल बिट क्वेश्चन करेंगे, जो आपने लेक्चर डिलीवर किया उसमें से आप सूटेबल लिटिल बिट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि आप ये जान सकें, टीचर को पता चल सके कि स्टूडेंट ने किस हद तक अंडरस्टैंड किया है, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए टीचर की मास्टरी ऑफ कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ग्रिप होगी अपने सब्जेक्ट पे, कमांड होगी, तभी आप बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम सुना होगा, जिसमें आप क्विज़ वगैरह ले लेते हो, बच्चों का ऑब्जर्वेशन को देखते हो, ठीक है। उसके अलावा सुमेटिव है जो एंड ऑफ द सेमेस्टर होती है, एंड ऑफ द ईयर होती है, जिसके अंदर फाइनल टेस्ट एग्जाम्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो ये सब जो है डिपेंड करते हैं बच्चों की असेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए, उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमें पता चले टीचर को कि क्लासरूम लेवल पे बच्चे जो है कितना इंप्रूव कर रहे हैं अपने लेसन से, लर्निंग से कितना सीख रहे हैं। तो लेसन प्लान के अंदर भी आपको हमेशा बच्चों से क्वेश्चन आंसर टेक्निक को आप इस यूज़ करते हुए उनकी असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्लान फॉर डिफ्रेंशिएशन। तो इसके अंदर ये क्या है कि आपने प्लान करना होता है कि जी आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, किस तरह से पढ़ा रहे हो। टू क्रिएट टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, टीचर्स शुड प्लान फॉर डिफ्रेंशिएट विद इन द लेसन। Differentiation involves providing multiple pathways for students to access and demonstrate their learning. This can be achieved by offering varied levels of support, adjusting the complexity of tasks, providing additional resources or materials, or assigning different roles within group activities. By planning of differentiation, teachers ensure that all students have equitable opportunities to succeed and make progress towards the learning objectives. ठीक है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि इसमें डाइवर्सिटी देखते हैं, बच्चों की नीड्स को देखते हैं और टीचर प्लान क्या कर रही है डिफरेंट लेवल पे वो जो है वो बच्चों की लर्निंग को बेहतर किस तरह से बना रही है, डिमॉन्स्ट्रेट किस तरह से कर रही है और किस तरह से वो स्पोर्टिव लर्निंग के लिए वो क्या क्या जो है वो प्लानिंग कर रही है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ कर रही है, एडिशनल कौन से मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल। आप ज़रूरी नहीं बुकिश नॉलेज पे रिलाई करें, आप उनको वीडियो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, ठीक है, कहीं से भी आप उनको जो है सूटेबल आप मटेरियल जो है बच्चों को दे सकती हैं, उनको होम टास्क असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट से प्लानिंग कर सकते हैं बच्चों की एजुकेशन को, लर्निंग को बूस्ट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। कंसिडर रिसोर्सेज एंड मटीरियल्स। टीचर्स नीड टू कंसिडर द रिसोर्सेज एंड मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लेसन। दिस इंक्लूड्स टेक्स्ट बुक्स, worksheets, multimedia material, manipulatives, technology or any other relevant resources. The availability and accessibility of these resources should be taken into account during the lesson planning process. Teachers may need to gather or create supplementary materials to enrich the instructional activities and meet the specific needs of their students.
प्लानिंग अहेड ऑफ द नेसेसरी रिसोर्सेज एंश्योर्स अ स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेसन। तो वो कह रहे हैं कि जितना आप अपना रिसोर्सेज मटीरियल आपका सूटेबल होगा और आप जितनी एक्टिविटीज़ या लेसन प्लान जितनी आप मेहनत करेंगे अपने लेसन प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए, उतनी आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होगी और बच्चे उतना ही अच्छे तरीके से आप एक लर्निंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। बच्चों की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए अवेलेबल रिसोर्स आपके पास कौन से हैं और आप किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने प्लानिंग को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सप्लीमेंट्री मटीरियल्स हैं, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ हैं और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बच्चों को नेसेसरी रिसोर्स मटीरियल है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपने लेसन प्लान को बेहतर करने के लिए। 8 स्टेप पे है रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज। After delivering the lesson, it is essential for teachers to reflect on its effectiveness and impact on students' learning. This reflection process allows educators to evaluate the success of the instructional strategies, assess students' engagement and understanding, and identify areas for improvement. Teachers can gather feedback from students, observe their interactions, and review the outcomes of assessments. Based on these reflections, teachers can revise their lesson plans, adjust instructional strategies, and make refinements to enhance future teaching and learning experiences. ठीक है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं टीचर अपने लेसन प्लान को बेहतर बना के, इफेक्टिव बना के, और एट द एंड ऑफ द लेसन क्या कहते हैं कि आप डिफरेंट जो भी आपने इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी यूज़ किए हैं, एक्टिविटीज़ यूज़ किए हैं, बच्चों को इंगेज किया, तो आप फीडबैक आपका जो है वो बहुत एक पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करता है कि आप फीडबैक लेते हैं अपन, तो आप बच्चों से इंटरेक्ट भी होते हैं, आपको रिव्यूज़ कमेंट्स पता चलते हैं, आप असेसमेंट के हवाले से अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।